ये फर्स्ट स्लाइड shows types of pricing. Types of pricing. First of all, there is institutional price setting versus price fixation through market mechanism. Markup pricing, proportional pricing, etc. ये terminology दी हुई है. And let's have from second page, second slide. तो पहली की institutional versus price setting through market mechanism. As we have discussed earlier, if market forces are allowed to freely interact, there is no interference, no third factor, only market forces. What do we mean by market forces? Market demand and market supply. If these two forces interact, and as a result of interaction between these two forces, price is determined, equilibrium is obtained, that means price is determined through market mechanism. In most cases, this is the case, that price is determined in the market. Now, market, there may be different types, but market demand and market supply is interacting. However, in different, commodities or inputs, there are different institutions. Those institutions recommend keeping in view the economic, social, political factors, etc. They make recommendations to the government for the approval of a price. For instance, for electricity, it is every month we getting OGRA. OGRA is making recommendation, and federal cabinet is giving approval. So that is not market demand and market supply. It is institutional. Similarly, gas and many other things, we have this institutional price setting. Markup pricing, when the seller got a certain amount of margin in his mind. Now, calculating the cost of production or cost of providing an item available to the buyer, तो उसकी cost calculate करने के बाद, now that cost can move up and down. कभी वो ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है. मार्केट के अंदर एक रिटेलर है, रिटेलर मार्केट से लेके आता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट के अंदर प्राइसेस वाइडली फ्लक्चुएट, तो वो हर रोज जो कीमत से पे वो लाया है, आके वो कैलकुलेट करता है कि हाउ मच प्राइस ही हैज पेड फॉर 1 kg. नाउ एडिंग हिज ओन मार्जिन, अपना मार्कअप के मुझे शाम तक 600 या 1000 या 3000 कितना मुझे जनरेट करना है, तो वो अपना मार्कअप ऐड करके प्राइस फिक्स करता है. इसको हम कहते हैं इट इज मार्क अप प्राइसिंग. प्रमोशनल प्राइस, you want to penetrate into the market, you want to attract customers towards your brand, so वो promote the act of offering a low price temporarily. ये हमेशा के लिए नहीं, ये प्रमोशनल वीक चल रहा है, प्रमोशनल मंथ चल रहा है, तो उस थोड़े टाइम के अंदर थोड़ा इंसेंटिव दिया हुआ है कि लोग आपके ब्रांड की तरफ, आपकी प्रोडक्ट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएं, और उससे यू कैन मेक प्रॉफिट, यू कैन एनहांस योर सेल्स एंड यू कैन मेक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट. स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, ये अभी तो आप भी खूब फैमिलियर हो गए होंगे इस स्पेशल इवेंट प्राइसिंग के साथ. यहाँ आए दिन आता है आजादी सेल, 14 अगस्त के इर्द गिर्द वो आजादी सेल शुरू हो जाती है. फिर सेम वे ईद उल फितर, ईद उल अजहा आती हैं, तो उससे महीना पहले, 15 दिन पहले, गेट रेडी फॉर ईद प्रेपरेशन, सेलिब्रेट विद व्हाट ब्रांड, जो भी आपका है, वो जे डाट हो, वो खादी हो, वो सर्विस शूज हो,
तो डिफरेंट, तो रमजान पैकेज सेम वे इंटरनेशनली बाहर जाए तो क्रिसमस पैकेज, क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, तो ये डिफरेंट ओकेजन्स के साथ ये अटैच है। हमारे तो आजकल मदर डे सेल और फादर डे सेल, तो डिफरेंट ओकेजन इवेंट्स के साथ ये अटैच। competitive versus monopoly pricing. Competitive prices जो जहाँ पे large number of sellers हों, no one in a position to dominate in the market, small contribution of each seller, तो उनके नतीजे में एक प्राइस, no one is exploiting, no one, it means fair price is determined. How fair price is determined? Where MR is equal to MC is equal to market price. तो जब ये compete करते हैं, none of them is dominating, तो market price जो perfect market में हमने या pure competition में हमने देखा था कि वो fair price है, जहाँ पे consumer surplus और प्रोड्यूसर सरप्लस इसके दरमियान बैलेंस है, तो दोनों सेलर एज वेल एज बायर बोथ पार्टीज आर हैप्पी, बोथ आर गेटिंग एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, both are getting extra benefit. Buyer is saving money and buying the quantity he or she intended to buy. उसकी जेब में पैसे बच जाते हैं, घर से खर्चने के लिए आया लेकिन बचा के दिया। सेलर जितनी कीमत पे बेचने को तैयार था उससे ज्यादा पे बेच लिया, तो उसने क्वांटिटी वही बेची लेकिन उसको कुछ ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए। तो ये कॉम्पिटिटिव के अंदर है। लेकिन इसके अपोजिट मोनोपोली प्राइसिंग, जहां एक सेलर है या एक सेलर की उजारादारी है, सेलर दो चार और भी हो सकते हैं, बट मेन वन पार्टी और वन सेलर इज डोमिनेटिंग एंड लीडिंग द मार्केट, तो उसके पीछे बाकी रोटी कमा रही है। तो वहां जब मोनोपोली प्राइस है तो मोनोपोलिस्ट क्रिएट शॉर्टेज, मोनोपोलिस्ट शॉर्टेज क्रिएट करके MC इक्वल्स MR प्रिंसिपल के तहत आउटपुट डिटर्मिनेशन होती है। लेकिन फिर हमने आपको पहले बताया कि वहां से आउटपुट डिटरमिन कर लिया, दैट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम देयर टू जॉइन अपवर्ड टू द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व्स को ज्वाइन करते हुए द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, जितनी हाई प्राइस आप चार्ज कर सके वो आप कंज्यूमर से करते हैं। तो इसके अंदर हमने ये भी कहा था कि ये फर्दर डिस्क्रिमिनेट भी करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो फर्दर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाता है बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो भी अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, के एक ही प्रोडक्ट एक ही चीज डिफरेंट बायर्स को आप डिफरेंट प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं, चीज वही है, डिफरेंट बायर्स से डिफरेंट प्राइस चार्ज की जा रही है। फॉर इंस्टेंस आप बाई एयर ट्रेवल करते हैं तो एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट सीटें वही मिलेंगी उनको, लेकिन उनका किराया डिफरेंट हो सकता है। किसी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है तो वहाँ स्टूडेंट्स वर्सेस प्रोफेशनल्स, तो उनकी वो कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन फी, वहाँ पे जो बेनिफिट्स, वहाँ पे पार्टिसिपेशन, वो उनकी इक्वली दे विल बी एंजॉयिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट, लेकिन उनको टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन उनके लिए कम रखी जाती है। तो सेम वे आप देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, गैस हो, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर्स, कमर्शियल बायर्स, रेजिडेंशियल बायर्स, इंडस्ट्रियल बायर्स एक्सेट्रा, तो उनको सेम प्रोडक्ट, सेम इलेक्ट्रिसिटी और सेम गैस इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स। ऑन द अदर हैंड हमने कहा था, देखा ऑलरेडी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में different units of the same product are sold to the same buyer at different prices.
जैसा कि वो बिजली में भी वो स्लैब, डिफरेंट स्लैब्स पे जो जो आप इंक्रीज करती है रीडिंग आपकी स्लैब, नेक्स्ट में आप एंटर होते हैं तो आपका पर यूनिट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो चेंज होता है। ऐसे ही ये सेल लगाते हैं बाय वन गेट सेकंड हाफ प्राइस, तो यूनिट सेम है, सिमिलर यूनिट, लेकिन एक पहला आपने फुल प्राइस पे लिया और सेकंड जो है वो हाफ प्राइस पे ले लिया, या बाय टू गेट थर्ड फ्री। तो प्राइस तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब यही है कि वो कंज्यूमर को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सके। कंज्यूमर सरप्लस की एक एक पेनी को वो वहां से स्नैक्स करने की कोशिश करता है। तो दिस वाज मोनोपोली प्राइस। उसके बाद सब्सिडाइज्ड प्राइस। सब्सिडाइज्ड प्राइस, सब्सिडी, you are well familiar with the term subsidy. Government is giving subsidy to different, residents of the country. Now subsidized when an item is provided to the buyer at a price below its cost of production or cost of provision. पब्लिक सेक्टर में ही चीज पैदा होती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं हो जाती है। बाज़ औक़ात पब्लिक सेक्टर उसको बाय करता है प्राइवेट सेक्टर से और थ्रू डिफरेंट चैनल्स वो मेक अवेलेबल करता है टू द बायर्स, लाइक यूटिलिटी स्टोर्स, लाइक अदर जुमा बाजार वगैरह। वहां पे सब्सिडी, स्पेशल प्राइसेस के महंगी कीमत पर लेकर बायर को उससे कम कीमत पे दी जाती है। उसका मतलब क्या है कि जो पुअर सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, जिनकी परचेजिंग पावर और सपोर्ट नहीं करती, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हार्डशिप। या तो ये सब्सिडी उनके लिए कंज्यूमर गुड्स, ये कंज्यूमर गुड्स पे पुअर कंज्यूमर्स के लिए, पुअर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ऑन द अदर हैंड समटाइम कैपिटल गुड्स, इनपुट्स के ऊपर सब्सिडी टू इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। ये वो महंगी टेक्नोलॉजी है जो प्रोड्यूसर है जिसने वो यूज करनी है टेक्नोलॉजी या इनपुट, वो रिलक्टेंट है या अगेन उसकी कुव्वत खरीद वो सपोर्ट नहीं करती, और गवर्नमेंट कंसीडर दैट अडॉप्शन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम, encouraging them by providing subsidy on fertilizer, on the purchase of tractors or laser land leveler, or similarly on the installation of a tube well, etc. तो सब्सिडी देती है, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी शुगर इंडस्ट्री, हमारी अदर इंडस्ट्रीज वो उससे बेनिफिट करेंगी, और हमारी जो लेबर फोर्स वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर उनको उसका फायदा होगा। उसके बाद और भी डिफरेंट टाइप्स हैं। समटाइम देयर इज सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट गवर्नमेंट कंपल्सरीली इंटरवीन नहीं करती, लेकिन समटाइम गवर्नमेंट समझती है, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स अगर उसकी शॉर्टेज होने का खतरा हो, कि खुराक की शॉर्टेज ना हो जाए, तो प्रोड्यूस फार्मर के लिए सपोर्ट प्राइस, एक मिनिमम प्राइस अनाउंस की जाती है। फार्मर इज नॉट कंपेल्ड, कंपल्शन नहीं है उसके ऊपर कि वो उस प्राइस पे बेचे। अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस बेहतर हो तो फार्मर इज फ्री टू सेल इन द मार्केट एट अ हायर प्राइस। But if prices in the market collapse, government is saying guaranteed price. We are giving guarantee and we are providing support. Government will purchase from the producers at that announced price. तो ये प्रोडक्शन से, sowing of crop से in fact in advance price अनाउंस की जाती है, giving a signal to the producer. So please produce, you will get at least this price. उससे बेहतर प्राइस मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये आपकी स्लाइड आ रही है
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है कि कोई मैनेजर है, दे वांट टू इम्प्रूव अपनी ओल्ड मशीनरी को न्यू मशीनरी के साथ रिप्लेस करना चाहते। ओल्ड मशीनरी निकाल कर नई मशीनरी, अगर नई मशीनरी आ जाएगी, व्हाट विल हैपन? मे बी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मे बी बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मे बी मोर क्वांटिटी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज का मतलब कि इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वो इंप्रूव कर जाए, पर यूनिट इनपुट आप ज्यादा आउटपुट हासिल कर लें, और उसके बाद जब बेटर क्वालिटी होगी तो इन द मार्केट होपफुली यू विल गेट बेटर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। लेकिन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी विद द न्यू मशीनरी वोंट बी पॉसिबल विद मैजिक लैम्प। तो ये मैजिक लैम्प से तो होगा नहीं, इसके लिए यू नीड मनी। आप नई मशीनरी खरीदेंगे, आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज लगाएंगे, दिस इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इज इट एडमिसिबल और नॉट। फिर सेम वे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपना प्रोडक्शन सिस्टम, पहले एक यूनिट है, दूसरा यूनिट लगाना चाहते हैं, या यू वांट टू एंटर इनटू अ बिजनेस, तो आप इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट सिमिलरली कोई एडवर्टीजमेंट, अपनी सेल एनहांस करने के लिए एडवर्टीजमेंट पे इन्वेस्टमेंट, ये थ्रू टीवी चैनल्स, थ्रू डिफरेंट बैनर्स, थ्रू बोर्ड्स, आप अगेन यू विल बी इन्वेस्टिंग। आप स्पेंड करेंगे, टीवी चैनल्स को पे करेंगे, आप बोर्ड्स पे, वो डिफरेंट साइट्स वो किराए पे मिलेंगी, आप किराया पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यू expect that the advertisement which you have made, the spending which you have incurred on advertisement will boost your sales in the times to come. उसकी आप उम्मीद रखते हैं, आपके हाथ में नहीं है, तो उसको आप कैलकुलेट अगेन करते हैं कि हाउ मच इंक्रीज देयर विल बी, whether it will be worth to invest or not. अब इसके लिए, अब इफ योर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, एक तरफ आपने खर्च करना है, एक तरफ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इफ योर कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स बिलोंग टू द सेम टाइम पीरियड, एक ही टाइम हो, तो फिर इतना सीरियस इशू नहीं है। फॉर इंस्टेंस, किसी के ऑलरेडी बना हुआ है, वो शेड बने हुए हैं, उसमें वो ब्रायलर वर्सेस लेयर्स, ब्रायलर डालने हैं, वो चंद हफ्तों के अंदर ब्रायलर डालेंगे, चंद हफ्तों के बाद उनको आप बेच देंगे, रिकवर, आपको रसीद, सेल रसीड्स आपकी जेब में आ जाएगी, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट बेनिफिट ओवर कॉस्ट, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आप उसकी निकाल लेंगे कि 1 रुपया लगाने पे आपको मिला क्या। लेकिन इन मोस्ट केसेस ऐसा होता नहीं। इन मोस्ट केसेस you go on spending for the first few years, particularly most of the fixed cost is incurred during the first 2 to 3 years. मिसाल के तौर पे अगर कोई वीविंग यूनिट लगाना चाहे, वीविंग यूनिट, सबसे पहले उसको उसके लिए जगह देखना होगी, क्या अपनी जगह है, अगर अपनी नहीं है तो जगह खरीदे। अगेन आपकी एक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो रेजिडेंशियल एरिया में है, वहां पे आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, वीविंग यूनिट शुरू कर दें, साथ ही आपकी महकमे वाले आपकी फैक्ट्री बंद करा दें। तो यू हैव टू फर्स्ट सीक इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे ये मुमकिन है, कहाँ पे नहीं। आपने जगह खरीदने के लिए पैसे, और फिर जगह मिल गई, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेसेसरी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग ओवरनाइट नहीं बनेगी, उस बिल्डिंग के लिए भी आपको इनपुट्स मैनेज करने हैं, उसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए डिजाइनिंग आर्किटेक्चर डिजाइन चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन इट विल टेक टाइम। और अगेन इफ यू आर वाइज एनफ, कंस्ट्रक्शन के बाद अगर आपने क्यू में रखी हुई है मशीनरी,
पहुंच गई, साथ ही बिल्डिंग मुकम्मल हुई एंड मशीनरी इज देयर, स्टिल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कैन टेक सम टाइम। और उसके बाद आपको रॉ मटेरियल, आपको लेबर, आपको सुपरवाइजर्स, आपको फिर प्रोक्योरमेंट स्टाफ, आपको सेल्स स्टाफ, आपने खरीदना भी है, धागा खरीदना है, कौन खरीदेगा? एक्सपर्ट, ताकि क्वालिटी यार्न खरीदे, बेहतर प्राइस पे खरीदे, बेहतर प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी खरीदेगा तो आपका कपड़ा बेहतर बनेगा, कपड़ा बेहतर बनेगा तो उम्मीद की जाएगी अगेन आप उसकी बेहतर प्राइस आपको मिल जाएगी। फिर सेल वाला जो फाइंड आउट करे, सर्च करे डिफरेंट एवेन्यूज वेयर योर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड आउट, तो उसके लिए यू विल टेक सम टाइम। सपोज इसके अंदर 2-3 साल लग जाए, 3 साल लगने के बाद मशीनरी आ गई, इंस्टॉल हो गई, स्टिल उसके बाद भी लगातार रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेज बिल, ये सारे आप लगातार भी खर्च कर, जो आपका वो प्रोडक्शन यूनिट चलेगा तो आपकी जो वेरिएबल एक्सपेंसेस वो साथ या रेकरिंग कॉस्ट वो चलती जाएगी। लेकिन आउटपुट स्ट्रीम आपकी शुरू होगी चौथे साल में या 5वें साल में, आउटपुट स्ट्रीम, but that stream will continue for next 25 to 30 years. 30 साल तक आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। Although there will be variation, occasional उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से गैप्स आएंगे या वो प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आएगी उस साल, कहीं कोई फॉल्ट आ सकता है, तो लेकिन योर बेनिफिट्स एट लार्ज यू विल बी गेटिंग फॉर 25-30 years। तो अब इनका कंपैरिजन, इट इज अ बिट टीडियस जॉब, इट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें डिस्काउंटिंग इज रिक्वायर्ड। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग क्या है? डिस्काउंटिंग आप एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू की, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसकी आप देखते हैं व्हाट, हाउ मच वर्थ इट इज टुडे। मुहावरा है, 9 नकद न 13 उधार, 1 in hand is better than 2 in the bush। तो अब आपने यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो डिस्काउंटिंग, अब डिस्काउंटिंग के लिए मैंने यहाँ पे दिया है फार्मूला, P0 is equal to Pn divided by 1 plus R raised to the power n। यहाँ पे P0 means present value, P0 present value, Pn is the future expected value in the nth year। वो 10वां साल, वो 20वां साल, वो 25वां, तो n की वैल्यू n आएगा कि कितने साल के बाद वो खर्च करना है या आपको मिलना है। Pn 1 plus R, R is the rate of discount, rate of discount। तो rate of discount क्या है? This is opportunity cost of capital और cost of borrowing capital। तो आम तौर पे बैंक इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम चला लेते हैं एज डिस्काउंट रेट, अगेन रेज टू द पावर n। तो Pn सपोज 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया आफ्टर 5 ईयर एंड 5 लाख आफ्टर 10 ईयर, अगेन 5 लाख आफ्टर 15 ईयर्स। तो Pn तो सेम है, उसकी नॉमिनल वैल्यू 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 3 जगहों पे आएगी, लेकिन n डिफरेंट होने की वजह से ये जो रेज टू द पावर n है, यहाँ पे 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू दैट विल बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आपके सामने बेनिफिट स्ट्रीम भी होगी और कॉस्ट स्ट्रीम भी होगी। एक तरफ बेनिफिट स्ट्रीम है, एक तरफ कॉस्ट स्ट्रीम है। हर साल के अगेंस्ट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तो किसी साल में सिर्फ कॉस्ट्स हैं, किसी साल में बेनिफिट्स और कॉस्ट दोनों हैं। तो हर वैल्यू को आपने डिफरेंटली डिस्काउंट करना है, ये n की वैल्यू चेंज करते करते।
तो जब हर एक को का निकालेंगे तो एक तरफ आपका कॉलम आ जाएगा डिस्काउंटेड बेनिफिट्स और एक कॉलम आपका डिस्काउंटेड कॉस्ट। तो आपने बेनिफिट्स और कॉस्ट्स दोनों को डिस्काउंट अलग अलग जब कर लिया तो दोनों को एड अप कर दें, दोनों का मजमूआ टोटल डिस्काउंटेड बेनिफिट्स एंड टोटल डिस्काउंटेड कॉस्ट। फिर आप उसकी बीसीआर निकाल दें। Simply, BCR is equal to total discounted benefits divided by total discounted costs. अब for an investment option to be economically viable or economically feasible or admissible, BCR must be greater than 1. अगर BCR 1 से छोटी है 0.9, it means it is not worth investment. You should not invest. अगर BCR 1.2 है, 1.5 है, it must be greater than 1. Higher the value of BCR, more attractive, more charming, and investment option will be considered. Same way, एक दूसरा पैमाना है NPV, Net Present Value. अब वही आपने जो ऑलरेडी डिस्काउंट किए हुए टोटल डिस्काउंटेड बेनिफिट्स और कॉस्ट आपके सामने है, तो सिंपली NPV इक्वल्स total discounted benefits minus total discounted costs. जो खर्चे आपके थे explicit, implicit, fixed, variable, सारे खर्चे निकालने के बाद क्या आपकी जेब में कुछ रहा या नहीं। So NPV must be positive. अगर जीरो हो गई, देने के बाद कुछ नहीं, it means आपको क्या मिला? कोयलों की दलाली में मुंह काला, तो कुछ ना मिला, it is not worth investment. It must be positive. और अगेन पॉजिटिव की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना वो चार्मिंग ज्यादा नजर आएगा प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब इसके बाद अगेन आपने निकाल लिया बीसीआर या एनपीवी के बुनियाद पे आपने फैसला कर लिया कि यस इट इज वर्थ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट एक टेस्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस कि आप उस प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की हेल्थ चेक करते हैं, क्या साउंड हेल्थ का हामिल है या नहीं, क्या छोटे मोटे जो शॉक्स हैं, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स आफ्टर 30 years, आफ्टर 20 years, तो ओवर टाइम चेंजेस आएंगी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो आपने नहीं सोचा, डिफरेंट फैक्टर्स अराइज, जैसे 9/11 हो गया, जैसे ये उसामा बिन लादेन, जैसे हमारा वो 28 मई का एटॉमिक ब्लास्ट, और उसके बाद दुनिया सारी नाराज। तो डिफरेंट जो इवेंट्स, डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं और आप फिर सकते हुए व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस, उसमें आप क्या करते हैं कि अपनी जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो आपने अज्यूम किए हैं उनमें 5% कमी ले, 5% कमी और 10% कमी। सपोज वो 5% कम हो जाए, व्हाट हैपेंस टू बीसीआर, दोबारा से बीसीआर दे। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट, अचानक गवर्नमेंट मिनिमम वेज लेजिस्लेशन नई वेज रेट अनाउंस करती है, आपको अपने एम्प्लॉइज को 2000 माहाना ज्यादा देना पड़े, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप अपनी कॉस्ट को 5% बढ़ा लें, बेनिफिट्स को कुछ ना करें, कॉस्ट को 5% बढ़ा लें, 10% बढ़ा लें, अगर फिर भी बीसीआर ग्रेटर देन 1 रह जाए, इट मींस आपका प्रोजेक्ट या आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है ज़ेरे गौर जो है अंडर कंसिडरेशन, इट इज अ हेल्दी प्रोजेक्ट, इट इज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक दाएं बाएं से मिलता है तो वो झटके एब्जॉर्ब कर लिए उसने, स्टिल इट रिमेन्ड वायबल, इकोनॉमिकली वायबल रहा, तो उसको आप कहते हैं कि भी ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अदरवाइज आप सेंसिटिविटी एनालिसिस की बुनियाद पे कि ठीक है वैसे तो फीजिबल था, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज आने से, जो कि इट इज वेरी लाइकली आने वाले टाइमों में चेंजेस आएंगी, द थिंग्स वोंट मूव एज यू हैव अज्यूम्ड टुडे। आपकी असम्पशन बेस्ड ऑन द पास्ट फैक्टर्स है, पास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन सो मेनी फैक्टर्स व्हिच यू हैवंट थॉट अबाउट वो आएंगे और वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट फिर भी सर्वाइव कर दे इन द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, तो यू गो फॉर इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज
आप कहते हैं कि नहीं रहने दो। हाँ भी बेटे, एनी क्वेश्चन?